afternoon. So in the last class, we studied De Moivre's theorem. 3 problems or 4 problems we have completed. Now, the most important problem, which is a evergreen problem, we can say it, because most of the time or frequently they ask this question: if cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to 0, is equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. इसका मतलब ये है बेटे, अगर आप cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, यानी रियल पार्ट को आप ऐड करो, इसका आंसर 0 है, और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट दैट इज sin अल्फा sin बीटा एंड sin गामा is also gives you 0 value. Similarly, then we have to prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 3/2, which is also equals to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. So in this one, we have to consider, we have to assume some values it in terms of alpha, beta, and gamma as triangles. Okay. So let's start. First of all, we have to assume a value is cos alpha plus I sin alpha. Conjugate of this one is 1 by a is equals to cos alpha minus I sin alpha. A value we are taking, as well as conjugate of A is 1 by A is equals to cos alpha minus I sin alpha. B is equals to cos beta plus I sin beta. You can't take here cos alpha and here cos beta. You can't. You can't take. When we are taking as a complex number, A plus IB, real part plus imaginary part, at the same time, we have to take the angle as same. If cos has alpha, तो sin भी alpha ही होना चाहिए. Cos beta है, तो sin भी beta ही होना चाहिए. Similarly, for C is equals to cos gamma plus I sin gamma. Conjugate of this one we can write as 1 by B is equals to cos beta minus I sin beta. 1 by C is equals to cos gamma minus I sin gamma. So here we wrote some values like A, B and C. Now we have to consider, check करेंगे, अगर हम A plus B plus C कर लेंगे तब A की वैल्यू क्या है बेटे? cos alpha plus I sin alpha. Cos alpha plus I sin alpha plus B. B value we have this one, cos beta plus I sin beta plus यहाँ का है C की वैल्यू cos gamma plus I sin gamma, cos gamma plus I sin gamma. Now what we have to do? We have to take the real part, but it doesn't includes I term. जिसमें I term नहीं रहते वो वाले part बाहर निकालो. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus I is the common for I, sin alpha plus sin beta plus sin gamma. So by given condition A plus B plus C is equals to what we have here, given, यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चन में, given cos alpha plus cos beta plus cos gamma will gives you 0, as well as sin alpha plus sin beta plus sin gamma. This is called as equation 1. From equation 1, cos alpha plus cos beta plus cos gamma gives you 0, plus I into sin alpha plus sin beta plus sin gamma will also give you 0. So what we can write here? A plus B plus C is equals to 0. 0 into anything, I into 0 into anything will give you 0. 0 plus 0 is also 0. Now, what we have to find here? Square. So it's better to understand, sir, यहाँ पर आप ये consider क्यों करें? A, B, C की वैल्यू लिए थे, ठीक है, चलो हम ये याद कर लेते, हमको याद करना है, हम याद कर लेते, लेकिन अब यहाँ कंसिडर क्यों करें आप? बेटे हमको कंडीशन बताया, वो तीनों एंगल को अगर आप cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ऐड करें, sin बीटा sin गामा को ऐड कर तो 0 होता, तो इसीलिए हम क्या करें, लोग ऐड करके चेक करें A plus B plus C,
तो हमारा प्रूफ सही हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग कैसा पहचान रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया इसलिए हम स्क्वायर को सोच लेंगे। a plus b plus c whole square is equal to 0. So now we can write a plus b plus c whole square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca equals to 0. बेटे ये इसके फॉर्मूले के बारे में तो बोलना जरूरी नहीं है, और मैं समझता कि ये जरूरी भी नहीं है कि बोलूं आप लोग इसके बारे में, राइट? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला हमने 7th क्लास से पढ़ा है। ओके, नाउ after expanding of a plus b plus c whole square formula, now we can write a square plus b square plus c square is equals to minus 2ab, बाहर आ गया, ये इक्वल के बाहर आ गया, minus 2ab, ये minus 2bc, ये minus 2ca, minus 2ab minus 2bc minus 2ca, a square plus b square plus c square, minus 2 कॉमन निकालिए, ab plus bc plus ca। बेटे देखो, अगर हम इसको थोड़ा छोटा करने जाएंगे, अब यहाँ a और b अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करने गए तो थोड़ा लेंथी हो जाता वो, तो इसीलिए मैंने क्या करा, आप एक छोटा सा काम कर लो, यहाँ पर आप सिर्फ इतने से पार्ट पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए बी सी लगा लीजिए आप। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए बी सी लगा लीजिए। So here we can write a square plus b square plus c square is equals to minus 2abc by abc, ab plus bc plus ca, a square plus b square plus c square minus 2abc। इसको अंदर भी जाइए बेटे, क्या बचेगा, ab will get cancel, 1 by c बच जाएगा। तो एक और एक स्टेप लिख लेंगे हम, abc plus bc by abc plus ca by abc। Now we have the same term in numerator as well as in denominator. A will get cancelled, B will get cancelled, BC, BC, CA, CA. So what we have left here, A square plus B square plus C square minus 2ABC, 1 by C plus 1 by A plus 1 by B. Now 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Now we can add these terms. A की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते, लेकिन थोड़ी यहाँ पर प्लेस नहीं रहने से मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हम फिर से वहां पे बोर्ड रब करेंगे, वहां पर जाके लिख लेंगे बेटे। A की वैल्यू क्या लिख लूं मैं, cis alpha, as we all know that cos alpha plus I sin alpha, we can write cis alpha. Similarly for B value plus cis beta whole square plus cis gamma whole square is equals to minus 2 ABC। वैसे लिख लो बेटा, ये फिर 1 by C, 1 by A, 1 by B. That means again if we are going to add these terms, we'll get cos alpha plus cos beta plus cos gamma. As we all know that its value is 0 and minus I will come out. बेटा मैं ये स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप समझने की कोशिश करो। माइनस आई इंटू 0। अब आप समझ जाइए, मैंने ए की प्लेस पे सिस अल्फा लिखा है स्क्वायर के साथ, प्लस बी की प्लेस पे सिस बीटा लिखा है स्क्वायर के साथ, प्लस सी की प्लेस पे सिस गामा लिखा है स्क्वायर के साथ। एज वी ऑल नो दैट वी हैव दिस वैल्यूज हियर, राइट? नाउ व्हाट वी हैव, माइनस 2abc इज सेम। सर ये 0 माइनस आई इंटू 0 कहां से आ गया? आप इसको तो सेम लिखे, ये पूरा पार्ट कहां पर गैप कर दिए सर आप? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा। 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। Here we have 1 by a value, 1 by b value, 1 by c value। फिर से क्या करो बोला, तीनों को ऐड करो। मैं तीनों को ऐड करा,
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, उसकी वैल्यू मेरे पास 0 थी, मैंने 0 लिख लिया। फिर पूरा में माइनस आई माइनस आई माइनस आई कॉमन था, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, उसको भी मैंने 0 बना लिया है। क्यों? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा 0 है। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बार बार ये स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले। cis alpha we can write cis 2 alpha plus cis 2 beta plus cis 2 gamma is equals to minus 2abc into 0। हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे बस, सब बेकार की बातें हैं बेटे। ठीक है, अब रियल पार्ट को अलग करिए। रियल पार्ट क्या है? कॉस इसका CIS इसका cos 2 alpha cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma equals to 0. Now we can use a formula for cos 2 theta is 2 cos square alpha minus 1 2 cos square beta minus 1 plus 2 cos square gamma minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 will gives you minus 3. So here 2 will be common here. We can write cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to minus 1 minus 1 minus 1 will gives you minus 3 in the left hand side. When it comes to the opposite sides, it give you plus 3. Now this 2 is multiplying this term and we are taking it out. We get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 3/2. This is the answer what we have here. एक आंसर आ गया बेटे। अब साइन की वैल्यू फाइंड करना है, फिर वही आंसर लेकर आना है 3/2। ठीक है, पूरा क्लियर रहेगा, देख लो बेटे सबको। जरा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी कर लीजिए। बेटर रहेगा कि आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट होने के बाद आपके फोन में मेमोरी रह जाएगा वो, और आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेके लिखना शुरू करो। फिर मेरे को ये थोड़ी सी प्लेस चाहिए थी सेकंड वाले आंसर बताने के लिए, ये सेकंड वाला आंसर बताना बाकी है अभी, हम इसके बाद में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट, जस्ट 10 सेकंड्स आई एम गोइंग टू गिव यू, फिनिश इट ऑफ। ओवर टाइम अप ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तो आगे हमारे पास आ गया था। अब क्या करें भाई? by using identity, using identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Here we have cos square theta, means we can write cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें। सो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 minus sine square gamma is equals to 3/2. 1 plus 1 plus 1 will gives you 3 minus 3/2 equals to sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma। बराबर है बच्चों? यस। अब ये एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, एलसीएम में 3 2 जा 6 minus 3, 6 minus 3/2 is equals to sine square alpha plus साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 3/2 क्या हो जाता है? ये 6 में से 3 निकालिए, 3/2 हो गया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। दोनों भी आंसर आ गए? यस आ गए, तो हैंस प्रूफ लिख दीजिए।
ओवर, वेरी गुड, जल्दी खत्म करो बेटे। टाइम अप। हो गया ना बच्चों, सब कर दूं? चलो ठीक। यस, कम टू द नेक्स्ट वन। ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और एक छोटा सा एक और बड़ा 7 मार्क का क्वेश्चन छूट गया था। छूट क्या गया था, हम थोड़ा आराम से जा रहे हैं। सेकेंड बिट का एक्सरसाइज 2A का ही है ये, सेकेंड बिट का सेकेंड क्वेश्चन है बिट, ठीक है। इफ सेम क्वेश्चन, cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, which is also equals to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, बीटा है ये। then prove that cos 3 alpha plus cos 3 beta, बहुत प्यारा प्रॉब्लम है बेटे। cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma। ये है फर्स्ट बिट। और सेकेंड बिट, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन में है 3 बिट्स, लेकिन ऑलमोस्ट वो 2 बिट ही पूछता, ठीक है। साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बेटे अगर किसी को थर्ड बिट पढ़ना है तो वो बहुत आसान मेथड है। मैं 2 बिट आपको ऐसे लेवल से समझा दूंगा कि थर्ड बिट आपको आसानी से आ रहा था। बस डिवाइडिंग बाय एबीसी, जैसा हमने अभी ये प्रॉब्लम में किया था, वैसा उसमें भी डीबीसी से डिवाइड कर लेना, ठीक है। आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन। चलिए अब आ जाओ, फिर से हमारे पास दिया क्या था वही सेम लिखना है। सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज गिवन, cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0, which is also equal to sin beta sin alpha sin beta plus sin gamma। बेटे इसको इक्वेशन 1 नाम ले लो आप, ताकि आपको बीच में यूज करना है इसको। फिर नाउ लेट a is equals to cos alpha plus I sin alpha, b is equals to cos beta plus I sin beta, c is equals to cos gamma plus I sin gamma. This we can write it as cis alpha cis beta cis gamma, ये भी लिख सकते हैं हम। अब इसमें 1/a 1/b 1/c क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, आप पूछेंगे। तो वो बेटा आपको आपके लेवल से समझाने के लिए था वो। इसमें हम यूज नहीं करते 1/a 1/c 1/a/b/c, राइट। कॉन्जुगेट वैल्यू हम यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे। अगर आप लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख लो, लेकिन वो यूज में नहीं आता। सेम यही करना है जो हमने यहाँ ऊपर किया है। अल्फा प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर लिए हम, cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा cos बीटा प्लस आई sin बीटा cos गामा प्लस आई sin गामा। रियल पार्ट को एक तरफ ले लिए, आई इनटू इमेजिनरी पार्ट एक तरफ आ गया, प्लस sin गामा। दिस वैल्यू वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1, this value we have equal to 0 from equation 1, since from equation 1 से आया तो ये 0 हो गया। अब सोचिए आप, सर हमने इसके बाद में स्क्वेयरिंग किया था, क्यों किया था, आंसर में हमारे पास स्क्वेयर था, इसीलिए हम स्क्वेयरिंग करें। अभी हमारे पास 3 है, 3 है 3, दैट मीन्स वी हैव टू
डू क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस सी बना लो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सर वहां पर स्क्वायर था तो आप स्क्वायर लिए, अब यहाँ पर अल्फा के पास 3, बीटा के पास 3 और गामा के पास 3 है, तो आप क्यूबिंग क्यों कर रहे हो? तो मैं समझा दूं आपको बेटा, ये डी मोइवर्स थ्योरम है, यहाँ पर इंडिसेस डायरेक्ट एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लूं मैं, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। आ गई बात, समझ में आ गई? a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या है भाई? a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है। यस, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, इज इक्वल्स टू माइनस क्यूब के ऊपर माइनस ही रहेगा, c क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्यूब पर -1 -2 -3, 3 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस फिर से प्लस को माइनस बना दिया, तो वो माइनस बन गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, as we have a plus b value is minus c from equation 2, minus c is equals to minus c cube, since from second equation, ये कहां से आया? यहां से आया, ये कहां पर गया? यहां पर गया, पूरे एरो दल्ले रखना बेटे, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस c क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस c क्यूब प्लस 3abc, इसको अंदर ले गए प्लस बनाए, इसको बाहर ले गए प्लस बना लिए। अब a की वैल्यू सिस अल्फा, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इंटू सिस गामा, बेटे उसको कॉस मत समझिए, सिस है वो, CIS सिस, 3 अल्फा प्लस सिस 3 बीटा प्लस सिस 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 सिस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इंटू सिस गामा है, मल्टीप्लाई में रहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे इसको, सिस अल्फा इंटू सिस बीटा इंटू सिस गामा है ना, तो जितने ही मल्टीप्लाई आएंगे उसको हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लूं बेटे अब फिर से, सिस 3 अल्फा हो गया शायद ना जी, हाँ बस है, यहाँ पे लिख लेंगे हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट रियल पार्ट cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, यहां से cos 3 अल्फा, ये cos 3 बीटा, ये cos 3 गामा इक्वल्स टू 3 cos, इसका मतलब cos है, cos प्लस आई साइन है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो बेटे लिख लो जरा, दोनों बीटा आगे देखिए, last 5 seconds are left, do it fast, up now for the next one। बेटे अगर हम बोर्ड रब भी कर रहे हैं तो परेशान मत होइए,
आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप रिवर्स करके देख लो, ठीक है। परेशान मत होइए कि आपके नोट्स कहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, रिकॉर्डिंग सही हो रही है। आप आराम से इसको बैठिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बैठ के लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में एक छोटा सा टिपिकल क्वेश्चन है बेटे, वो अक्सर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट के लिए पूछता है, ऐसा मेरा है कहना, लेकिन अब तक मैं देखा हूं कि वो सप्लीमेंट्री का ही प्रॉब्लम है, उसमें भी आ जाता रेगुलर में भी, लेकिन अक्सर क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में आएगा। इफ स्मॉल एन, if small n is an integer, small n is an integer and z is equals to cis theta, where theta is not belongs to 2n plus 1 into pi by 2, then show that z power 2n minus 1 divided by z power 2n plus 1 is equals to I into tan n theta। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बेटे। क्वेश्चन आसान है, दिखने को आपको ये सिर्फ एक ड्रॉनी प्रॉब्लम लग रहा है। बता क्या रहा है ये, अगर आपका एन स्मॉल इंटीजर, स्मॉल एन अगर आपका इंटीजर है तो z की वैल्यू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, एज वी ऑल नो दैट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आ गया तो वो z से डिनोट होगा और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेकिन हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल नहीं रहना, वरना cos 0 हो गया तो फिर अब हमारे पास बचा ही नहीं रियल पार्ट। ऑब्वियसली ये क्या है, सिर्फ डराने के लिए है, और अगर आप सही समझेंगे तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर है, उसके अंदर की वैल्यू है ये, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यू है। तो सोचना क्या है भाई, थीटा आपका 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं रहना इन ऑड टर्म्स, इन ऑड टर्म्स स्पेशली वो इसके लिए है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव हियर, फर्स्ट वी हैव गिवन z value is equals to cis theta, so we can write z is equals to cos theta plus I sin theta। Okay, done। Now what we have, z power 2n चाहिए था सर मुझको, ठीक है लिख लो बेटा फिर, z power 2n is equals to cos theta plus I sin theta। जैसा हमने z के ऊपर पावर ये लगाया वैसे ही यहाँ पर भी पावर 2 पावर n लग जाएगा। z पावर 2n is equals to cos, जैसा पता है हमको कि डी मोइविट्स थ्योरम है ये, तो ये डायरेक्ट इंडिसेस आके एंगल से मिल जाएंगे, 2n थीटा प्लस I sin 2n थीटा। नाउ 2 पावर n की वैल्यू आ गई, हाँ सर आ गई। अभी क्या करना है, आराम से जो हमको गिवन दिया उसी के ऊपर काम करना है, z पावर 2n minus 1 divided by z power 2n plus 1। Where is the value of z power 2n? Here we have cos 2n theta plus I sin 2n theta minus 1 upon z power 2n वैल्यू यहां से यहां तक है, माइनस 1 यहां से आ गया, फिर z power 2n cos 2n theta plus I sin 2n theta plus 1। इसके बाद में क्या करूं सर, cos 2n थीटा माइनस 1 को ब्रैकेट में लिख लो, प्लस I sin 2n थीटा को यहां पर लिख लो, अपॉन cos 2n थीटा प्लस 1 को यहां पर लिख लीजिए, और इसको लिखिए आप प्लस I sin 2n थीटा। ये फॉर्मूला कौन सा है, cos 2 थीटा माइनस 1 है, cos 2 थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता -2 sin square theta, isn't it? Yes, -2 sin square n theta, यहाँ पे n है इसीलिए हम n ले रहे हैं, प्लस I sin 2 theta, sin 2 theta 2 sin n theta cos n theta। अच्छा, ये फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है बेटे, 2 cos स्क्वायर थीटा है,
2 cos स्क्वायर एन थीटा, एन रहने से हम वो फॉर्मूला लिए, प्लस आई साइन, फिर से वही फॉर्मूला लिखे, 2 साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, यहाँ लिख लेना बेटे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या पूछा मैंने, कॉस 2 थीटा माइनस 1 दिया, तो ये प्लस 1 को हम अंदर लेकर आके माइनस 1 बनाए, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एन रहने से हम एन थीटा लिए, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हमने वही लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एन था इसीलिए हम एन थीटा लिखे। क्या कॉमन निकलेगा, 2 और साइन कॉमन निकलेगा, माइनस साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा अपॉन 2 और कॉस कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, ए कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इजंट इट। अब इसके बाद में क्या बचा बेटे, कुछ नहीं साहब, इन दोनों को उड़ा दो खलास, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, यस वेरी गुड, एक बच्चा सही बोला, tan minus 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 we can write as -1, is there any doubt, no, क्योंकि 1 रहा नहीं रहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, यहाँ छुप के बैठे हुआ रहता उन्हें, उसको उठा लेना, ऐसा जागो बल्कि जगा देना, ऐसा साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉस में कभी आई को देखा ही नहीं, इसीलिए उसको हटाने के लिए हम ये सब नखरे कर रहे हैं बेटे, cos n theta plus I sin n theta tan n theta। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, सिंस वी नो दैट आई स्क्वायर वैल्यू इज -1, अरे हाँ, तो ये -1 मैं निकाल कर आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो लिख दो फिर, साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा बाय कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। Now, what we have? So we have I common in the numerator. So we can take it at common. ठीक है, फिर ले लो ना फिर, सोचने का क्या है इसमें, I को बाहर उठा के लेके आए, तो ये I एक बाहर आ गया, tan and थीटा भी सेम लिख दिए हमने। अब बचा क्या था बेटे, ऊपर एक I बचा है, I sin and थीटा प्लस cos and थीटा अपॉन cos n theta plus I sin n theta, cos plus I sin, cos plus I sin, देखो cos plus I sin, cos plus I sin, दोनों ने सेम सेम हो गए, चले आते, I into tan n theta is left, hence proved, this is what we have to prove here। आराम से समझिए, आराम से लिखिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो अच्छा है, वरना पूरी की पूरी मैथ्स खराब है फिर आपके लिए। अच्छा, फॉर्मूले बस याद रहना, बेसिक अच्छे से आना बेटे, वो दोनों भी अगर नहीं आए तो फिर बेकार हो जाता। नेक्स्ट,
चलिए बेटे एक्सरसाइज सेकंड में चलते हैं। उसमें भी 7 मार्क के कुछ क्वेश्चन है। जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हम पहले 7 मार्क की प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे, उसके बाद में फिर हम 4 मार्क्स पर जाएंगे। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों की मर्जी की बात है, वो अगर आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए, बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ना चाह रहे हैं भी तो आपकी मर्जी, लेकिन पढ़ना तो पड़ता देखो बेटे, ठीक है। अब जब हम सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दैट इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कब बनेगी, कैसा बनेगी, हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू 0, और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0। जब हम इसके रूट निकालने जाएंगे तो इसके ऑब्वियसली बेटा दो रूट निकलेंगे, चाहे वो आप ओमेगा बोलिए या ओमेगा स्क्वेयर बोलिए। ओमेगा बोलिए ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस और माइनस I√3/2, ऐसी कुछ वैल्यू आती है, आपको पता होगा। ओमेगा स्क्वायर ले लो या ओमेगा ले लो, आपकी मर्जी। तो हम जब भी इसके रूट निकालने जाएंगे तो इसके इमेजिनरी रूट निकलेंगे, क्योंकि वहां पर आई वाला टर्म है। तो ऐसे वाले पार्ट जिसको हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर अगर आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू इसमें 1 रहेगी, ठीक है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रहेगी इसमें। अगर हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो ओमेगा क्यूब होता है, तो सिंप्लीफाई कर लो आप, 1 आंसर आया था। ऑब्वियस यहाँ पे दो रूट्स है आपके पास, आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर से, राइट। उतना लंबा नहीं जाना है हमको, बस सीखना ये है कि हम हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है एक क्वाड्रेटिक है, जिसके दो रूट्स आएंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो आपको वैल्यू आती है। तो इसके बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन है 7 मार्क का, जो वो भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, हम थोड़ा सा उसको भी पढ़ लेंगे। इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू 0, comma, where z is a complex number, then prove that where z is a complex number, then prove that prove that z plus 1 by z whole square, z square plus 1 by z square whole square, z cube plus 1 by z cube whole square, z power 4 plus 1 by z power 4 whole square, z power 5 plus 1 by z power 5 whole square, z power 6 plus 1 by z power 6 whole square. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 term is there. What we have to prove? 12 is the value of this one. इसकी वैल्यू 12 बताना है बेटे, इसके ऊपर हम देख लेंगे, ठीक है। आज डी मोइवर्स का लास्ट डे रहेगा, आज हम इस पे खत्म कर लेंगे क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क थे एग्जाम में हमने वो पढ़ लिया है। दो और क्वेश्चन भी है, अगर टाइम रहेगा तो मैं वो दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, या फिर वरना आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतनी बेसिकली नॉलेज देने के बाद आपको बुक में देख के सिर्फ समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम आएगी। इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, जो हमारा गिवन कंडीशन है उसके पास जाएंगे हम। गिवन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू 0, बराबर है। ये क्या है बेटे, ये जेड 1 कॉमा जेड स्क्वायर लिख लो पहले, सिंस लिख लेंगे पहले हम। सिंस 1 कॉमा जेड स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज जेड क्यूब की वैल्यू 1 एंड जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू 0, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर गिवन कंडीशन पे आइए। गिवन कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन z प्लस 1 बाई जेड होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, जेड क्यूब प्लस 1 बाई जेड क्यूब होल स्क्वायर, प्लस जेड पावर 4 प्लस 1 बाई जेड पावर 4 होल स्क्वायर, प्लस जेड पावर 5 प्लस 1 बाई जेड पावर 5 होल स्क्वायर, जेड पावर 6 प्लस 1 बाई जेड पावर 6 होल स्क्वायर। आ गया, यस। अभी क्या करें, अभी इसको थोड़ा सा सोच लिए
कि ये z तो z ही रहेगा, 1 के प्लेस पे अगर मैं z क्यूब लिखा तो कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं है z स्क्वायर। फिर यहाँ पर मैंने z स्क्वायर सेम लिखा है, फिर 1 की प्लेस पे फिर मैंने z क्यूब लिखा बाई z स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस z क्यूब की वैल्यू तो हमको मालूम है 1, प्लस 1/1 हो गया, इसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी इनको कुछ और करने की, प्लस ये z क्यूब इंटू z हो जाएगा, ये z क्यूब बाई z क्यूब इंटू z हो जाएगा फिर से होल स्क्वायर, प्लस z क्यूब इंटू z पावर 2, वैसे सेम पावर शुड बी एडेड, z क्यूब 1 की वैल्यू z क्यूब है, यहाँ पर भी z क्यूब इंटू z स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर z क्यूब की वैल्यू z क्यूब इंटू z क्यूब 1, प्लस प्लस 1/1 z क्यूब इंटू z क्यूब 1 इंटू 1 1 होल स्क्वायर, z प्लस यहाँ से एक z चले गया तो ये z स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर प्लस यहाँ से चले गया, यहाँ से चले गया तो एक z बच गया होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/1 1 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर प्लस z क्यूब की वैल्यू 1 है इंटू z प्लस 1 इंटू z बाई z क्यूब कैंसिल 1/z आ गया, फिर से 1/z की वैल्यू क्या लिखे थे बेटे? अभी 1/z की वैल्यू क्या लिखे थे? z स्क्वायर लिखे, 1/z की वैल्यू क्या लिखे? z स्क्वायर लिखे, तो फिर वही लिखो यहाँ पर भी z स्क्वायर प्लस z क्यूब को वैल्यू 1 बन जाएगी, z स्क्वायर सेम रहेगा, z क्यूब कैंसिल, 1/z स्क्वायर को क्या लिखे? 1/z स्क्वायर को क्या लिखे? z लिखे, हाँ बस उसके करीब में देख लेना, z स्क्वायर आ गया होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 अगेन 2 स्क्वायर हो गया ये। चलो बेटे z प्लस 1/z, z प्लस z स्क्वायर, z प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये -1 होल स्क्वायर हो गया, प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z की वैल्यू भी -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस z स्क्वायर, z प्लस z स्क्वायर, फिर से -1 स्क्वायर लगाओ, -1 स्क्वायर लगाओ, फिर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z, फिर -1 स्क्वायर लगाओ, प्लस 2 स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया, -1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 4 5 6 10 12, is this your answer what we have to prove? चलो बेटे जल्दी कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से लिखो, गलती नहीं करना बेटे। Next one, started. Now the next one, if small n is a positive integer, then show that p plus iq whole power 1 by n plus p minus iq whole power 1 by n is equals to 2p square plus q square whole power 1 by 2n into cos of 1 by n tan inverse of q by p। बेटा ये p और q कुछ नहीं है, बस एक आप ये सोचो कि p वाला टर्म रियल वाला है, q वाला टर्म इमेजिनरी वाला है, सिवाय आपको परेशान करने के कोई और इसमें इसका एम नहीं है। क्या बता रहा है वो? एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इंडिसेस 1/n है, सेम एज दिस, इसका इंडिसेस 1/n है, उसको ये प्रूफ करके बताइए बोला उन्हें। तो आप क्या करो, कंसीडर में भाई जैसा था हम 1 + i 1 - i को सॉल्व करें तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कंसीडर बेटा, इसको शॉर्टकट में बताऊंगा मैं आप लोगों को, p plus iq बस is equals to multiply and divide p square plus q square under root p square plus q square p plus iq। क्यों करे सर? आप सोचो, हमने r जो लिया था अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से, हाँ राइट, x के प्लेस पे हमारे पास p है इसीलिए हमने p स्क्वायर लिया, y के प्लेस पे q था तो हमने q स्क्वायर ले लिया है यहाँ। अब p प्लस आई क्यू को आप सेम लिख लो अंडर रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आई इंटू क्यू बाई अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p plus I q is equals to p square plus q square whole power 1/2। इसको हम लिखेंगे cos alpha plus I sin alpha। हमने दोनों के लिए क्या एज्यूम कर लिया है यहाँ पर, सिंस p बाय अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को हमने cos alpha एज्यूम किया है, q बाय अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin alpha हमने एज्यूम किया है। ये मैंने इसमें एज्यूम किया, ये यहाँ पर मैंने यूज किया है। स्टेप के बाजू स्टेप लिखना इसीलिए ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। चलिए p प्लस आई क्यू होल पावर 1/n मैंने लगा लिया, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1/2 डिनोमिनेटर, यानी कि अगर यहाँ पावर में देखो 1/n है तो 1 होता, यस, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा होल पावर 1/n p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n इंटू cos अल्फा बाई n प्लस आई साइन अल्फा बाई n। क्या किया हमने, ये पावर को अल्फा से मल्टीप्लाई और ये पावर को यहाँ के अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये कौन सी वैल्यू है, p प्लस आई क्यू की वैल्यू होल पावर 1/n है। अब हम क्या करेंगे इसको, सिमिलरली p माइनस आई क्यू होल पावर 1/n, ये सेम लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंजेस आएंगे, अल्फा बाई एन माइनस आई साइन अल्फा बाई एन। अब दोनों को भी वो ऐड कर लेने के लिए कहा है तो हम ऐड कर लो, अभी ऐड करिए। क्या ऐड करना है भाई, नाउ LHS p स्क्वायर प्लस p प्लस आई क्यू होल पावर 1/n प्लस p माइनस आई क्यू होल पावर 1/n। इसका आंसर यहां पर है, दोनों में कॉमन है नहीं है, हाँ है कॉमन। क्या कॉमन है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n कॉमन है इनटू cos अल्फा बाई n प्लस आई साइन अल्फा बाई n cos अल्फा बाई n माइनस आई साइन अल्फा बाई n माइनस आई साइन प्लस आई साइन गेट कैंसिल, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा बाई n, 1 + 1 2 हो गया। चलो 2 भी आ गया, ये भी आ गया, हमारा आधा आधा आंसर आते चले गया बेटे। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n cos अल्फा बाई n बच गया, फिर इसके बाद में 2 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल पावर 1/2n cos सेम लिखेंगे हम, 1/n भी सेम लिखेंगे, इंटू अल्फा लिखेंगे। सर इतना सब क्यों कर रहे हैं आप बेटे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एट लास्ट क्या करना मालूम, डायरेक्ट आप जैसा यहाँ पर पहुंच जाएंगे आप ये वाला भी आंसर लिख सकते, आपको उतना सब याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास शो दैट वाला प्रॉब्लम दिया, आप इतना तो इसको यूज कर सकते हो। कॉस डायरेक्ट डाल दिया 1/n, अभी मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए था, अल्फा की वैल्यू साइन बाई कॉस tan, डिनोमिनेटर कैंसिल, q बाई p, वैसे देखो tan q बाई p, tan को उधर भिजा दो, इनवर्स 1 है वह, अल्फा की वैल्यू कहां से बना लिए हम, tan इनवर्स ऑफ q बाई p। क्या करे, साइन बाई कॉस करे तो वो tan अल्फा हो गया। फिर से देखो ये कहां से आया, अल्फा की वैल्यू बना रहा हूं मैं, साइन बाई कॉस, दिस बाई दिस उल्टा जा रहा हूं मैं, साइन बाई कॉस tan अल्फा हो गया, हाँ हो गया, देखो ऐसा tan अल्फा हो गया। अब मैंने साइन को पहले लिखा था तो ये इसको पहले लिखूंगा, q बाई अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p बाई अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए तो बचा क्या आपके पास, tan अल्फा इज इक्वल टू q बाई p बचा, tan को उठा के यहाँ लाओ, tan इनवर्स ऑफ q बाई p, हियर वी गेट द आंसर एज इट रिक्वायर्स। ठीक है, चलो हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक क्वेश्चन था बेटे वो वाला 1 प्लस साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने ट्राई कर लो या फिर कोई और उसमें मेथड में आप समझ जाइए उसको। ठीक है, हमारा डी मूवर्स यहाँ पे खत्म हो गया, हम इंशाल्लाह कल शायद हो सकता है हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।